ठीक है, तो आज शायद ये चैप्टर खत्म होगा या मे बी नहीं और एक लेक्चर लग सकता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। यस, ओके, सो read this question. Okay, see here, uh, just wait. Yes, the question is that the expression s equal to a upon b into 1 minus e raised to minus bt is dimensionally correct or true. The dimensional formula for a and b are respectively if s is the displacement at any instant, either lt and t or this or this. Okay, see here, the things to understand here is that whenever a formula is dimensionally correct, what happens is the dimensions of LHS is going to be same as the dimensions of RHS. That is, we have already seen last time. And at the same time, we also seen that e raised to जो होता है, e raised to कोई भी अगर suppose होता है, तो यहाँ पे ये dimensionless number होता है, ठीक है, dimensionless, right? और ये जो पूरा नंबर बनता है e raised to मिलके, वो पूरा भी एक्चुअली dimensionless ही होता है। तो इसलिए ये बात हमको यूज करनी है यहाँ पे। तो देखो ठीक से, तो अब यहाँ पे e रेस टू के पावर में क्या दिख रहा है हमको, ये bt दिख रहा है, करेक्ट है, bt। सो हियर b into t has to be dimensionless, and if this b into t is dimensionless, then the dimensions of b must be actually 1 upon t, मतलब ही dimensions of b must be actually t raised to minus 1। ये बताइए कि समझ में ठीक से, t raised to minus 1। ओके, b का डायमेंशन तो हमको मिल गया, नो डाउट, बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ ए हियर। तो उसके लिए देखो, अब यहाँ पे ये जो है yes, see here, अभी e raised to minus bt is going to be a dimensionless and 1 is also dimensionless, and we know that the difference of these two dimensionless quantities is also going to be a dimensionless। that means this whole chuck, ये जो ब्रैकेट है पूरा, ये ब्रैकेट ही डायमेंशनलेस है, उसका कोई डायमेंशन है ही नहीं। जिसका मतलब ये होता है कि इस s का जो डायमेंशन है वो इस a अपॉन b के डायमेंशन के इक्वल रहेगा। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे s का डायमेंशन अगर a अपॉन b के डायमेंशन के बराबर है, ये बात अगर यूज करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, s का डायमेंशन, s मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है s इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो इसलिए फिर s का डायमेंशन बन जाएगा L1, राइट? एंड a एज इट इज, जिसका हमको डायमेंशन निकालना है, और b का डायमेंशन जो है वो तो हमने ढूंढ लिया, ये देखो यहाँ पे this is the dimension of b, that is t raised to minus 1। so if we replace it by that, is t raised to minus 1 here, then we can just transfer this t raised to minus 1 in this side so as to get this as L1 into t raised to minus 1 as the dimensions of a, करेक्ट है? तो a के डायमेंशन कितना मिल रहा है, L1 t minus 2, सॉरी t minus 1, ओके, L1 t minus 1, ये बन गया a का डायमेंशंस, दैट्स इट। तो देखो a के डायमेंशंस बन रहे हैं L1 t minus 1 और b के डायमेंशंस बन रहे हैं t minus 1, and that is going to be the answer, that's it, okay।
Yes, just go to the next question. See here, dimensional analysis of relation energy raised to n is equal to pressure difference raised to 3 by 2 into volume raised to 3 by 2 gives the value of n as. So देखो, it is again just a very simple question because substituting the dimensions of all these values. ये देखो energy का dimension क्या होता है, ये हमको पता है already. It is m1, l2 and t minus 2, right? तो raised to n यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमने as it is रखा, ठीक है, इक्वल टू. अब देखो प्रेशर डिफरेंस का डायमेंशन क्या होता है. अब देखो प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वही प्रेशर डिफरेंस का भी होगा, राइट है. तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर का जो डायमेंशन है तो वो होता है m1 l-1 t-2. तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया और उसका जो पावर है 3/2 वो भी हमने यहाँ पे एज इट इज रखा, ये देखो इधर. और इनटू ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है हमको पता है L3 होता है. तो ये L3 हमने यहाँ पे डाल दिया और उसका जो पावर है 3/2 वो इधर भी एज इट इज रखा, ठीक है. अब यहाँ पे ये डायमेंशंस जो है तो वो अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये n इधर भी चला जाएगा, इधर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. Even not only this 3/2 will also get multiplied through this all these three terms in this here and here also. So in the next step we can get it as mn l2n t minus 2n, which is equal to m raised to 3/2. Here it will be m raised to minus 3/2 and t raised to minus 2 into 3/2, which will become minus 3 in the next step. And here it is going to be L raised to 9/2 as it is, which is a simplification of this here. Okay. The next step will become mn l2n t minus 2n is equal to, अभी देखो यहाँ पे पेयर किसके है, m तो एक ही है तो इसलिए m का जो एक ही टर्म आएगा नो डाउट. l यहाँ पे दो बार आया, ये देखो l रेस टू -3/2 एक तरफ है और यहाँ पे l रेस टू 9/2 भी तो है. तो इसलिए फिर यहाँ पे पावर्स विल गेट एडेड टुगेदर. Since the base is same, the power will become L raised to -3/2 plus 9/2 and t का भी एक ही पावर है, t एक ही है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा t raised to -3 as it is. So that in the next step we can get this as mn l2n t minus 2n is equal to m 3/2 and l raised to क्या है यहाँ पे, ये देखो -3 plus 9 becomes 6, right? And 6 upon 2 becomes 3 actually, and this t raised to -3 as it is. So that if we equate all these values here, then देखो mn को अगर हम इक्वेट करेंगे m raised to 3/2 के साथ तो हमको क्या मिलता है, n का वैल्यू 3/2 मिलता है, करेक्ट है. और इवन ये भी हम कर सकते हैं, ये देखो ये 2n को अगर हम इक्वेट करेंगे इस 3 के साथ ना तो देखो 2n is going to be equal to 3. Again we get the same value of n, that is 3/2, which is already there in this option number 3 here. Okay, go to the next question. Okay, शायद हमने ये किया है ऑलरेडी, है कि नहीं. p का जो डायमेंशन होता है वो a अपॉन v स्क्वायर के बराबर होता है तो इसलिए a का जो डायमेंशन है वो pv स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और a अपॉन b का जो डायमेंशन है तो वो फिर क्या आएगा, देखो a का डायमेंशन pv स्क्वायर के बराबर है और b जो है b इज गोइंग टू बी ऑफ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ द v मतलब वॉल्यूम, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना. तो जो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनको सेम डायमेंशन का तो होना ही पड़ेगा. तो इसलिए फिर यहाँ पे a अपॉन b का जो डायमेंशन है वो pv स्क्वायर अपॉन v के डायमेंशन के बराबर होगा, मतलब ही p इंटू v के बराबर होगा. जो कि अब यहाँ पे देखो p का डायमेंशन क्या होता है तो हमको पता है m1 l-1 एंड t-2, करेक्ट है. ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन. और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है हमको पता है, वो भी L3 होता है, राइट, L3. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा m1 as it is, this l-1 and this l-3 becomes, sorry, L3, L3. तो L3 और l-1 मिलके क्या बनता है, L2 बनता है, राइट. और ये t-2 kept as it is. And again we know that these are the dimensions of energy, correct है. These are the dimensions of energy and that's why we can conclude that
this A upon B has the same dimensions as that of this energy here. Okay, let us move further. Here we go. Number of particles crossing per unit area perpendicular to x-axis in unit time is given by n. अब देखो यहाँ पे n माना क्या है, क्या था ठीक से, n मतलब n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इतना बड़ा है n, तो इसलिए n का डायमेंशन जो है वो हमको निकालना पड़ेगा सेपरेट. ओके, और इट इज गिवन बाय माइनस d into n2 minus n1 upon x2 minus x1, where n1 and n2 are the number of particles per unit volume. Okay, and x1 and x2 are the distances. Then the dimensions of d are. तो देखो d के डायमेंशंस हमको ढूंढने हैं, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे n का डायमेंशन ढूंढना पड़ेगा. n, हाउ विल यू गेट दैट? तो देखो n मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक नंबर है ना वो, पर यूनिट, देखो यहाँ पे जो दिया उन्होंने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया and per unit time also. That means we will have to divide this number of particles by area and also by time, so as to get this n. So n का जो डायमेंशन है तो वो नंबर का डायमेंशन अपॉन एरिया का डायमेंशन इनटू टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा, जो कि अभी नंबर को तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, सो लेट अस रिप्लेस इट बाय 1. एंड एरिया का डायमेंशन जो है वो हमको पता है ऑलरेडी, वो होता है L2, और टाइम का तो T1 पता ही है ऑलरेडी. तो इसलिए ये फाइनली n का जो डायमेंशन है तो वो हमको मिलने जा रहा है n इज इक्वल टू L-2 एंड T-1. समझा क्या से, ये बन गया n का डायमेंशंस. ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हो आराम से कि n1 एंड n2 इन दोनों का भी डायमेंशन हमको निकालना है. बट है क्या वो n1 n2 कौन है, दे आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ओनली. ओके, सो n1 एंड n2 इन दोनों के जो डायमेंशंस है तो वो कितने रहेंगे, तो उसके लिए हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा. तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर का डायमेंशन और वॉल्यूम का डायमेंशन डिवाइड करने से हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन मिल जाएगा, जो कि 1/L3 रहने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम का डायमेंशन हमको पता है L3 होता है. तो वो अगर हम डाल देंगे यहाँ पे तो n1 का जो डायमेंशन रहेगा और n2 का जो डायमेंशन रहेगा वही एक्चुअली n1 माइनस n2 का भी रहेगा. करेक्ट है, क्योंकि डिफरेंस करने से डायमेंशंस चेंज नहीं होते हैं. डिफरेंस के डायमेंशंस उस डिफरेंस के अंदर इन्वॉल्व रहने वाले हर एक क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर हुआ करते हैं, राइट. इसलिए यहाँ पे इस डिफरेंस n1 माइनस n2 के डायमेंशन रहेंगे, या चलो n2 माइनस n1 है वो, इट्स ओके, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ दैट. यस, सो n2 माइनस n1 का जो डायमेंशन है वो बनता है L-3. ओके, ये L-3 बन गया, राइट. एंड देन वी कैन से जस्ट से x1 एंड x2. तो देखो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो x1 एंड x2 है तो इनका डायमेंशन क्या होगा, तो देखो x2 का डायमेंशन डिस्टेंस के बराबर होगा, x1 का भी डायमेंशन डिस्टेंस के बराबर होगा, तो x2 माइनस x1 का भी डायमेंशन डिस्टेंस के बराबर ही होगा, मतलब ही L1 बन गया वो, राइट है. ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हमने सभी के डायमेंशंस अगर डाल दिए तो देखो ये इक्वेशन हमारे पास है n इज इक्वल टू माइनस ऑफ d इंटू n2 माइनस n1 इंटू अपॉन x2 माइनस x1, राइट है. तो ये हमारा इक्वेशन है. तो अभी इसके अंदर अगर सारे डायमेंशंस अगर डाल देते हो तो हमको क्या मिलेगा, देखो n के बदले उसके डायमेंशंस आ जाएंगे, जो कि हमारे पास है, देखो यहाँ पे ये है n के डायमेंशंस. तो ये मिल गया हमको L2 t माइनस सॉरी -2 एंड t -1. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस d के डायमेंशंस तो हमको निकालने हैं, फॉरगेट अबाउट द माइनस साइन, इट डजंट हैव एनी डायमेंशंस. एंड व्हाट अबाउट दिस n2 माइनस n1, इट्स ऑलरेडी हियर, देखो यहाँ पे. तो L2 माइनस L1 n2 माइनस n1 के डायमेंशंस क्या है, L-3 है. ओके, और x2 माइनस x1 के डायमेंशंस क्या है, ये देखो इधर L1 है, राइट. तो वो अगर डाल देंगे यहाँ पे तो ये बन गया L1. नेक्स्ट
सो अभी ये जो इस तरफ लेके जाओ, नहीं तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो इसको, तो हमको क्या मिलेगा देखो नेक्स्ट स्टेप में, तो L minus 2 into T minus 1 is going to be actually D into ब्रैकेट में ये L minus 1 जो है वो ऊपर, L1 जो है वो ऊपर जाके L minus 1 बनेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे वो L minus 4 बन जाएगा। ओके, एंड D के डायमेंशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस L minus 4 को नीचे डाल देंगे, जिससे वो बनेगा L minus 2 into T minus 1 and that is to be divided by L minus 4 here. Okay, L minus 4, and this L minus 4 goes up and becomes plus 4, so plus 4 minus 2 becomes plus 2, and hence we can say that this L2 and T minus 1 are the dimensions of this D here. Okay, D के जो dimensions है तो वो हमको मिल रहे हैं L2 T minus 1, ये देखो L2 T minus 1 is going to be there in this fourth option. Okay, so just check. We have found out the dimensions of D here by knowing all the other dimensions actually. Yes. Okay, let us move further. Yes, just read the question fast. Velocity of sound in medium is given by a raised to half into d raised to minus half, where d is the density of medium. Then a represents what? Elastic constant or energy or volume or compressibility. Okay. अभी एक्चुअली ये जो है क्वेश्चन तुम्हारा इलास्टिसिटी आपने पढ़ा है ऑलरेडी, आज उसका टेस्ट भी था एक्चुअली, है कि नहीं? उसमें आपने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस जो होते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो उसके अंदर आपने देखा है कि इलास्टिक कांस्टेंट करके एक कंसेप्ट आता है, जिसका एग्जांपल होता है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और उसका जो डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल चलो यंग्स मॉडुलस अगर देखते हो तो यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, करेक्ट है? एंड हियर द यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन है, तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस का डायमेंशन और स्ट्रेन का डायमेंशन निकाल के हमको डिवाइड करना पड़ेगा, बट स्ट्रेन डजंट हैव एनी डायमेंशंस, राइट? तो स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो इसलिए बाकी उसके बदले 1 डाल देंगे, और स्ट्रेस का जो डायमेंशन है वो यहाँ पे एक्चुअली हमको फोर्स अपॉन एरिया करके मिलने वाला है, बराबर? और फोर्स अपॉन एरिया का जो डायमेंशन अगर निकालेंगे तो जो प्रेशर का मिलता है कि नहीं, वही डायमेंशन हमको मिल जाता है, तो इसलिए इलास्टिक कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो हमको मिलेगा फोर्स अपॉन एरिया, मतलब प्रेशर के डायमेंशन के बराबर, जो कि होता है m1 L-1 एंड T-1। ओके, तो ये बात हमारे पास है। अभी अगर हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, then we can just find out the dimensions of A here. Let us try to find out the dimensions of A, and if this A matches, dimensions of A matches with this elastic constant, then it will be the option number 1 correct. If these dimensions of A match with this energy, then we can say that this option 2 is correct. Volume 3, compressibility 4. Okay, let us check. ये देखो V is equal to A raised to half into D raised to minus half, ऐसा दिया हुआ है, तो इसको हम सभी डायमेंशन अगर डाल देंगे इसके बदले, तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा। V का, V मतलब क्या है यहाँ पे, साउंड का वेलोसिटी, राइट? तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमको पता है ऑलरेडी, L1 T-1 हुआ करता है, और A हमको पता नहीं, A का डायमेंशन हम अज्यूम कर लेते हैं m raised to A, L raised to B and T raised to C. A, B, C are the unknowns, we have to find out them. एंड तीसरा जो है वो है डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन हमको पता है ऑलरेडी, मास इनटू लेंथ, वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसलिए m1 L-3 will be the density of dimensions of density and raised to minus half as it is. Now in the next step we can say this will be m0 L1 T-1 is equal to, अब यहाँ पे ये हाफ को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों के लिए, जिससे ये बन गया m raised to A/2, B raised to B/2 and T raised to C/2. And here also this minus half is distributed inside, so as to get this m raised to minus half
and L raised to minus 3 minus of minus plus 3 by 2 and T raised to 0 as it is. Okay, and then just solve this LHS further. So ये LHS जो है वो तो वैसे ही रहेगा, बट RHS जो है वो हमको सॉल्व करना पड़ेगा. ये देखो m raised to a by 2 into m raised to minus half क्या बनता है, m raised to a by 2 minus half ऐसा बनता है. L का जो पावर है यहाँ पे b by 2 है और यहाँ पे वो 3 by 2 है, तो L का पावर क्या बनेगा एक्चुअली, L raised to b by 2 plus 3 by 2 बनेगा. और T का पावर यहाँ पे तो c by 2 है लेकिन यहाँ पे 0 है, तो इसलिए यहाँ पे वो c by 2 plus 0 मतलब c by 2 ही बनेगा. और इसके बाद फिर अगर हम इक्वेट करेंगे m के पावर्स, L के पावर्स और T के पावर्स, तो उससे हमको तीन इक्वेशंस मिलेंगे, तीनों वैल्यूज मिल जाएंगे आराम से. देखो सबसे पहले हम ये a by 2 minus 1 by 2 जो वैल्यू है वो वाला वैल्यू हम इक्वेट करेंगे इस 0 के साथ, जिससे हमको मिलेगा a by 2 minus 1 by 2 is equal to 0, जिससे हमको मिलता है a by 2 is equal to 1 by 2. ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते कि नहीं, a by 2 is equal to 1 by 2. This 2 gets cancelled and we are left with a is equal to 1, no doubt. Then again this b by 2 plus 3 by 2 is equated with 1 here, which is the power of L. So b by 2 plus 3 by 2 को अगर 1 के साथ इक्वेट किया तो उससे हमको मिलेगा, इसका एडिशन कर दो तो वो बनेगा b plus 3 upon 2 which is equal to 1. So अगर b plus 3 is equal to 2 है तो इसका मतलब क्या बनेगा, b is equal to 2 minus 1 2 minus 3 बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं b is going to be equal to minus 1. करेक्ट है, तो b का वैल्यू मिल गया. चलो ठीक है, और तीसरा जो है c का भी वैल्यू हमको मिल जाएगा अगर हमने ये तीसरा टर्म जो है वो इक्वेट किया -1 के साथ, तो c by 2 is equal to -1. So c by 2 equal to -1 means c is going to be equal to -2, and hence we can replace it by that here in place of a, b and c, so that we get these dimensions of a as m1 l minus 1 and t है वो, so it is t minus 2 here, so that this is nothing but the dimensions of elastic constant, and that's why that is going to be the correct answer. Yes. ये एक्चुअली है एंगुलर मोमेंटम का, आपको पता है क्या एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या होता है, mvr. ओके, ये तुमने केमिस्ट्री में भी देखा होगा. तो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, और j उसको उन्होंने बोल के रखा है. ओके, तो j का जो डायमेंशन है वो क्या बनेगा एक्चुअली, mvr ना. तो इसलिए m मतलब क्या, मास, तो मास का हो गया m1. वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है l1 t minus 1. ओके, एंड रेडियस का बनता है l1 सिंपली, so that we can get the dimensions of angular momentum as m1 l2 and t minus 1, right? तो ये बन गया dimensions of j. Then we want to find out the dimensions of j square by e, where e is going to be the kinetic energy, right? So what is this j square upon e? तो देखो j का स्क्वायर मतलब, अभी j का डायमेंशन हमारे पास है ऑलरेडी m1 l2 t minus 2, सॉरी t minus 1 ना, और उसका स्क्वायर. Okay, and that is to be divided by this energy. What are the dimensions of energy? We know that it is m1 l2 t minus 2, right? And if we simplify this further, then we get this as m2 l2 t minus, sorry, l4 and t minus 2 as it is, and that is to be divided by dimensions of energy, which are simply m1 l2 and t minus 2. correct hai? So that here t minus 2 gets cancelled, l2 also gets cancelled, leaving behind l2 in the numerator, and m1 also gets cancelled with this m2, leaving behind m1 here. So we get that m1 and l2, that's it, m1 into l2. तो अभी यहाँ पे देखो ये m1 l2, ये जो डायमेंशंस किसके है, डायमेंशंस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशंस है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता नहीं है, बट इट इज डिफाइंड एज m into r स्क्वायर, मास into रेडियस का स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है. तो इससे उसका डायमेंशन हमको मिलता है m1 एंड रेडियस का डायमेंशन l और उसका 2.
तो ये बनता है डायमेंशंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, which matches with this the dimensions of this j square by e here, and that's why we can select this as a correct option here. Yes. Yes, just read this question now. When the wave travels in a medium, the displacement of a particle at a time at x at time t is given by y is equal to a sine bt minus cx. Okay, where a, b, c are the constants of the wave, and then the dimensions of b upon c are same as that of. तो देखो b और c के डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? ये देखो साइन के ब्रैकेट में रहने वाला हर एक टर्म डायमेंशन लेस होना जरूरी है। तो अगर bt को डायमेंशन लेस बनना है और cx को भी डायमेंशन लेस बनना है, तो cx डायमेंशन लेस है, मतलब c का डायमेंशन जो है वो x के डायमेंशन के उल्टा होगा, मतलब ये l-1 के बराबर होगा। और एट द सेम टाइम bt का भी हम बोल सकते हैं वही कि bt अगर डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0 है, तो इसका मतलब b का जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए? t-1 के बराबर होना चाहिए, राइट? तो b का डायमेंशन भी हमको मिल गया और c का भी मिल गया। तो b अपॉन c निकालने का में कौन सी बड़ी बात है? वो तो निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि b का डायमेंशन हमको मिल गया t-1, वो डालने का ऊपर इधर न्यूमरेटर में, और c का डायमेंशन तो ऑलरेडी हमको पता है l-1, वो भी डाल देंगे इधर डिनोमिनेटर में, so that we can get this l-1 go up and becomes l+1, so that l1 t-1. What is these dimensions are? They are the dimensions of velocity, because velocity's dimensions are given as l1 t-1, and that's why we can say that this is the dimensions of velocity actually. Okay. Okay, this question can also be solved easily. Pressure is equal to F raised to A, E raised to B, and T raised to C, where F, E, T are the force, energy, and surface tension of the values of A, B, and C respectively are. So again, just use the dimensional analysis to solve this further. Pressure P is going to be equal to F raised to something A, E raised to B, it should be B here, and T raised to C as it is. Okay. And now if we replace all the value dimensions here, then we get this m1 raised to m1 l-1 t-1, which are the dimensions of pressure here, that is equal to force का जो dimension होता है वो हमको पता है m1 l1 plus 1 into t-2 और उसका whole raised to a। फिर दूसरा एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है हमको पता है m1 l2 t-2 उसका होल रेज टू b पावर। और तीसरा टाइम, t मतलब क्या है यहाँ पे? नहीं, हाँ सॉरी, सरफेस टेंशन ना, t मतलब सरफेस टेंशन है। तो देखो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज व्हाट? फोर्स पर यूनिट लेंथ, रिमेंबर। तो इसलिए फिर फॉर सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t-2 और लेंथ का होता है l1, so that this l1 will get cancelled and what we are left with is simply m1 t-2, right? So m1 into t-2, these are the dimensions of surface tension which is expressed as t here। ठीक है, तो ये m1 t-2 ये बन गया डायमेंशन सरफेस टेंशन के, जो हमने यहाँ पे रिप्लेस किए। उसका पावर जो है वो c तो रहने वाला ही है, नो डाउट,
अभी इसको और आगे सिंप्लीफाई करो तो हमको मिलेगा m1 l-1 lt-1 as it is, and this a will be distributed in to every term here inside, जिससे हमको मिलता है ma l plus a, फोर्स का क्योंकि l1 होता है ना इसलिए, और t raised to minus 2a, दिस इज करेक्ट। एंड हियर इट इज गोइंग टू बी m1, इसको भी अगर b को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों के लिए तो वो बनेगा mb l2a 2b, it should be 2b here, okay, and t raised to minus 2b as it is, and here also this c will just distributed for all these three terms here inside, so that we get this mc l0 and t raised to minus 2c as it is, so that we can just keep this LHS as it is, and RHS में क्या है ना, m raised to a, m raised to b either, or m raised to c gives us m raised to a plus b plus c, correct? And here we can see l raised to a, l raised to 2b, and l raised to 0 gives us l raised to plus a minus plus 2b only, right? And t का जो पावर है यहाँ पे बन रहा है minus 2a, इधर बन रहा है minus 2b और इधर minus 2c, so that we can get this t raised to minus 2a minus 2b minus 2c as it is. And if we equate all these values with this LHS here, यहाँ पे ये जो m का पावर जो a plus b plus c है उसको हमको 1 के साथ इक्वेट करना है, एल का जो पावर है उसको -1 के साथ और टी का पावर -1 के साथ इक्वेट करना है, तो इससे हमको 3 इक्वेशंस मिलेंगे, देखो ऐसे, ओके। तो अभी अगर ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो देखो, हाउ विल यू सॉल्व दिस इक्वेशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल we'll try to solve this first and second equation here. अच्छा, एक जस्ट चेक करो, ये L का जो पावर है वो a plus 2b है, that is to be equated with -1, okay, yes, so ये plus a plus 2b है, and that is to be equal to -1, and ये तीसरा इक्वेशन है -2a minus 2b minus 2c equal to 1, yes, so if we just add subtract these two equations, तो अच्छा सबसे पहले ऐसा करो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से a एलिमिनेट करके लो, if we eliminate a from the first equation here, नहीं तो ऑलरेडी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो है ना वो a और b के फॉर्म में है, राइट? तो अगर हम ये फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन यूज करके अगर c को एलिमिनेट कर पाए, c को एलिमिनेट करना है हमको, c को, तो c एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो वो बन जाएगा 2a plus 2b plus 2c is equal to 2. This is this first equation multiplied by 2, okay? And this third equation will be kept as it is, so that it will be minus 2a minus 2b and minus 2c is equal to -1. And if you just add these two equations, we are going to get nothing. एक मिनट, इक्वेशंस करेक्ट है क्या, चेक करो एक बार। a plus b plus c is equal to 1, a plus 2b is -1, and -2a minus 2b minus 2c equal to -1, करेक्ट तो है तीनों इक्वेशंस।
ये प्लस है। हाँ, इधर और एक मिस्टेक है। ये देखो, प्रेशर का जो डायमेंशन है ना, तो वो हमको पता है ऑलरेडी। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? इट इज m1 l1 -1 एंड t-2 होता है, बराबर। तो ये -2 होना चाहिए इधर। ओके, दिस इज -2 हियर। Here also it should be -2 actually. Yes, then we can get the correct answers now. So this is, yes, wait, अभी यहाँ पे ये -2 रहने वाला है, राइट? तो अभी ये थर्ड इक्वेशन हमने एज इट इज रखा, यहाँ पे -2 आ रहा है। और फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ अभी अभी कोई पॉइंट ही नहीं है ना। अभी यहाँ पे अगर इस -2 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो हमको क्या मिलेगा? ये फर्स्ट ही इक्वेशन मिल जाएगा। दैट मीन्स वी एक्चुअली हैव ओनली टू इक्वेशंस हियर। एक तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा a प्लस 2b इज इक्वल टू -1, ये दूसरा इक्वेशन है। ओके, तो अभी यहाँ पे इन दोनों में से अगर a को अगर एलिमिनेट करते हो, तो उसके लिए हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशंस so that we get this a cancelled and we are left with b minus 2b, which is actually going to be minus b plus c, which is going to be equal to, here 1 plus 1, it is 2 actually. So minus b plus c must be equal to 2. Or just see here in the options directly. ऑप्शंस के अंदर देखो कौन से ऑप्शंस जो है वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तीनों भी नहीं, दोनों ही। ये देखो, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए बस। a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी 1 एंड a प्लस 2b मस्ट बी -1। देखो ठीक से, आई विल जस्ट रिपीट अगेन। a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी 1 एंड a प्लस 2b मस्ट बी -1। तो देखो, a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड a प्लस 2b शुड बी -1। तो ये दोनों कंडीशन कौन से इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये देखो, ये चेक करो, 1 - 1 + 1 कितना होता है? 1 1 कैंसिल और ये 1 इधर। चलो ठीक है, बट a प्लस 2b इक्वल टू -1 आ रहा है क्या? ये देखो, a मतलब 1 प्लस 2 इंटू -1 मतलब 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1। करेक्ट है। तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चेक करके देखो, बाकी कोई भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। भले a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 है इधर, लेकिन a प्लस 2b इक्वल टू -1 है क्या? ये देखो, -1 प्लस 2 बिकम्स +1 एक्चुअली। वी वांट -1 हियर। इवन इसमें भी ये देखो, a प्लस बी प्लस सी -1 आ रहा है, तो वो तो पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और ये पे a प्लस बी प्लस सी तो 1 आ रहा है, नो डाउट। लेकिन a प्लस 2b अगर करेंगे तो 1 + 2 इट विल बिकम 3 एक्चुअली। वी वांट -1 हियर। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक ही ट्रिपलेट है, जो कि ऑप्शन 1 में प्रेजेंट है, और वही हमारा आंसर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। If the vibration frequency of atoms in the crystal depends on the atomic mass, atomic spacing, and compressibility, then it is proportional to, yes. Okay, so vibration frequency of atoms, तो उसको हम बोल देंगे F, चलेगा? F is given to be proportional to मास m। तो मास का कोई तो भी पावर
रहेगा। एटॉमिक स्पेसिंग मतलब रेडियस आर, आर का भी कोई तो भी पावर रहेगा। और कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है, कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो उसका भी कोई तो भी पावर सी रहेगा सपोज, देन इट्स प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो मतलब आर के कौन से पावर के साथ वो डिपेंड करेगा, ये हमको ढूंढना है, या एम के कौन से पावर के साथ वो डिपेंड करेगा, सी के कौन से पावर के साथ डिपेंड करेगा, ये हमको ढूंढना है। वी कैन फाइंड इट आउट बाय डायमेंशंस, बिकॉज फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या होते हैं हमको पता है। देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब उसको यहाँ पे हमने एन बोल दिया है, तो सम पावर ऑफ mass, some power of radius and some power of c compressibility will be here. So अभी frequency के dimensions क्या होते हैं तुमको पता है, it is t-1। mass का dimension तो m1 ही होगा क्योंकि वो fundamental quantity है, radius भी length के dimension के बराबर होगा, और तीसरा compressibility जो होता है ना, compressibility, तो वो actually reciprocal of bulk modulus होता है। तो compressibility का dimension bulk modulus के dimensions के उल्टे बराबर आएगा, उल्टा। अभी बल्क मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है, इट इज सेम एज द स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, सेम एज द प्रेशर, प्रेशर मतलब ही m1 l-1 t-2 होता है, करेक्ट है। ये हो गया डायमेंशन कॉम्प्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का डायमेंशन फिर क्या मिलेगा, उसका उल्टा करके हमको मिलेगा, उल्टा मतलब ये m1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा m-1, राइट। फिर ये l-1 ऊपर जाएगा तो बनेगा l+1, and t-2 ऊपर जाके बनेगा t2, right? And then we can just put this compressibility here, and this is, that's why this compressibility is like this. तो m-1 l1 t2 ये डायमेंशंस जो compressibility के है वो इधर से मिले मिले हैं हमको, ठीक है। और फिर आगे जाके यस, अभी अभी नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो एक्चुअली हमको क्या करना है, डायमेंशन एनालिसिस यूज करना है, डायमेंशंस यूज करना है, ठीक है। तो अगर डायमेंशंस यूज करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, देखो इन सब के डायमेंशंस अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो देखो क्या होगा। तो n के बदले उसका डायमेंशन हमने डाल दिया जो कि t-1 है, राइट, इक्वल टू मास के बदले उसका डायमेंशन डाल दिया m1 रेज टू a भी तो है आराम से, और r मतलब रेडियस है या एटॉमिक स्पेसिंग है, उसका डायमेंशन l1 के बराबर होगा, और रेज टू b भी हमारे पास है। और फिर आगे c जो है, c मतलब क्या है यहाँ पे, कॉम्प्रेसिबिलिटी, जिसका डायमेंशन हमारे पास ऑलरेडी है m-1 l1 एंड t2, ओके, ये +1 है, भूलो मत, yes, and then we can just simplify this further and get this t-1 to be equal to, what is this, m raised to a here into l raised to b here, and again here it is m raised to minus, अच्छा इसे c भी तो है ना, तो ये c अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो m raised to minus c आएगा यहाँ पे, l raised to c आएगा, और t raised to 2c बनेगा, ओके। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो m कितने बार आया, 2 बार, तो उसके पावर में आ जाएगा a माइनस सी। l कितने बार आ रहा है, 2 बार फिर से, तो इसलिए l के पावर में आएगा b प्लस सी, राइट। और फिर तीसरा जो है तो वो बनेगा t, टाइम कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, एक ही बार आ रहा है, it's okay, it will be t raised to 2c only, that's it. And then we'll be able to equate the dimensions of m, l and t from both sides. But as we know that there is no m and l here in the LHS, that means m raised to 0 into l raised to 0 into t raised to -1 should be written there, so that we can equate this a minus c with 0. ये देखो यहाँ पे जो a minus c जो है m का पावर, वो m के इधर के पावर के साथ इक्वेट करना है, इधर का जो b का l का पावर है जो कि b प्लस c है, वो हमको इक्वेट करना है इधर के l के पावर के साथ जो कि 0 है फिर से, और तीसरा जो t का पावर है 2c, वो हमको इक्वेट करना है इधर के t के पावर के साथ जो कि -1 है, राइट। सो इट इज -1, and then we can just say that a is going to be equal to c, b plus c is equal to 0 means b must be equal to minus c, and c itself is actually going to be -1/2, right. So if we put this value of c here in this equation, then we get this b is equal to minus of -1/2 matlab +1/2, okay. And if we put this value of c as it is here in this equation, in the first equation, then we get this a is equal to -1/2. So देखो a is going to be -1/2, b is equal to +1/2, and c is going to be equal to -1/2, right.
एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट द, अब देखो यहाँ पे r का जो पावर है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे b बन रहा है कि नहीं, और b का वैल्यू कितना मिल रहा है, हाफ मिल रहा है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर r का हाफ पावर आने वाला है, जिसका मतलब ये होगा कि फ्रीक्वेंसी n विल बी प्रोपोर्शनल टू, n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r, क्योंकि रूट मतलब ही हाफ होता है। बाकी कोई भी चेक करके देखो, तो मास का जो पावर है, तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो समझा क्यों, क्योंकि n इज प्रोपोर्शनल टू रूट r। बट अगर मास का पावर कितना मिल रहा है हमको, माइनस हाफ, राइट। तो माइनस हाफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे a के बदले अगर हमने माइनस हाफ डाल दिया, तो फ्रीक्वेंसी विल बी ऑब्जर्व टू बी प्रोपोर्शनल टू m रेज टू माइनस हाफ। एंड m रेज टू माइनस हाफ का मतलब क्या हुआ, वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m एक्चुअली, बराबर। बट ऐसा है क्या इधर, नहीं। ये देखो यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल टू 1/m² है, तो इसलिए वो ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। और तीसरा c जो है, c के साथ कैसे वो प्रोपोर्शन में है, तो उसमें c का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है, माइनस हाफ मिल रहा है। तो वो अगर हमने यहाँ पे डाल दिया इस इक्वेशन के अंदर c के बदले, तो हमको फ्रीक्वेंसी n जो है वो प्रोपोर्शनल टू c रेज टू माइनस हाफ मिलेगा, जिसकी वजह से n विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट c अगेन। ओके, तो ये रूट c के साथ प्रोपोर्शन में होगा, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या बताया जा रहा है, frequency is proportional to c only, which is not correct one, and that's why this is the only thing which is going to be the correct one. Okay, yes, चलो ठीक है, so let us stop here. One more lecture will be required for this chapter. We will continue the same chapter on Monday. ठीक है, the remaining MCQs will be covered in the next lecture. Okay, thank you all of you. Bye bye.